Hello, this is the lecture number 5 for the chapter area of parallelogram for the class 9th, and in the last lecture we have discussed up to question number 6 of the third exercise. Now in question number 7 it is given that D and E are the points on the side AB and AC of a triangle ABCD, or triangle ABC. We have D and E are the points on the side AB and AC of a triangle ABC such that area of DBC is equal to area of this EBC. So given that in this triangle, area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC, ये given है आपको, and you have to prove that that the line DE is parallel to BC. This you have to prove. Now if you draw a perpendicular DM and EN from E and F, you draw construction here, draw DM perpendicular to BC and EN perpendicular to BC. Now it is given that area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC. Now DBC का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट. इन द राइट हैंड साइड EBC भी हाफ बेस इसका BC है, हाइट EN है, तो इसमें से हाफ BC से हाफ BC कैंसिल हो गया, तो TM किसके इक्वल आ गया, EN. मीन्स इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, तो इनके ऑल्टीट्यूड्स भी बराबर होंगे क्योंकि बिकॉज दे आर द सेम बेस. नाउ DE इज पैरेलल टू BC. Why? Because distance between them are equal. Distance between them are equal. Lines are parallel if the distance between the two lines is always equal. So the line will be parallel. So this is the question number 7. थोड़ा easy question था बहुत. Last questions के मुकाबले last lecture में थोड़े lengthy questions was there. In question number 8, it is given that XY is the line parallel to BC of triangle ABC. There is a line XY is a line parallel to BC like this. ये इसके parallel है. And it is given that if BE is parallel to AC, and CF is parallel to this AB, it is given meet XY at E and F. ये given है हमें like this. This is Y, this is X. It is meeting XY at F. ये हमें given है. Now it is given that what is given, XY is parallel to BC and the diagram is drawn, and you have to prove that area of triangle ABE is equal to area of triangle ACF. ABE triangle का एरिया ACF triangle के एरिया के बराबर है, ये प्रूफ करना है. Now ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE is equal to half the area of parallelogram. ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल पर ये ट्राइंगल बन रहा है और ये पैरेललोग्राम बन रहा है BCYE. ABE का ट्राइंगल का एरिया, ABE ट्राइंगल का एरिया ऑन द सेम बेस BE एंड पैरेललोग्राम BCYE हाफ होगा क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के व्हेन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF का एरिया किसके हाफ होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ध्यान दीजिएगा BCFX के बराबर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, दिस इज द सेम बेस BC एंड द सेम पैरेलल लाइंस, दिस इज द सेम पैरेलल लाइंस, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX. क्या है रीजन का, सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस, सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस. देखो ध्यान से, इस पैरेललोग्राम का एरिया BCFX एंड BCYE का एरिया बराबर है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. तो दिस इज X एंड दिस इज Y. सो बिकॉज दीज टू आर इक्वल, तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE
is equal to area of triangle ACF from the step number 1, 2 and 3. तो इजी ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना था, फिगर ये आपको खुद बनानी थी। ये दिस इज F and this is E. So this is the question number 8. Somewhat easy question, थोड़ा सा easy था, 7th भी easy था and 8th was also easy question. Area of triangle is on the same base. मान ला ये ट्राइंगल ले लिया हमने, तो ये सेम बेस पर बन रहा है, एक पैलोग्राम ये बन रहा है सेम बेस पर BE पर, और पैरेलल लाइंस हमारी ये दे रखी हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ही, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैलोग्राम व्हेन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, द साइड AB ऑफ द पैलोग्राम ABCD, ध्यान से बनाइएगा फिगर। देयर इज अ पैलोग्राम AB and CD. It is given. Now ABCD is the side AB is produced to P. This is produced to P and joined to this point and to any point. A line through A is drawn parallel to CP. The line through A is drawn parallel to CP. Where is CP? This is the CP, drawn parallel to this. Meet the BC at the point Q and the meet at Q, produce at Q, यहाँ पर आके meet कर रहा है, and then the parallelogram PBQR, एक पैलोग्राम हमने और बनाया है, ये पैलोग्राम दे रखा है, दिस इज द पैलोग्राम, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। थोड़ा सा डायग्राम ये सीधा सा बन रहा है, दिस इज लाइक दिस PBQR, ये फिगर आपकी बुक में भी दे रखी है। सो इट इज गिवन, तो हमें क्या गिवन है इसमें, ABCD एंड PBQR आर पैलोग्राम्स, ये हमारे पैलोग्राम्स हैं और ये लाइन हमें पैरेलल दे रखी है यहाँ पर, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट इन दिस फिगर, यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैलोग्राम PBQR, इन दोनों पैलोग्राम का एरिया बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ ज्वाइन करा, AC और QR को ज्वाइन कर लिया, AC एंड QP को ज्वाइन कर लिया। नाउ सी इट वेरी केयरफुली, इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। दोनों में ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ABQ ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्टेड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये रहा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ। ऐसे करने से क्या हुआ, जब ACQ में से ये वाला एरिया माइनस कर लिया तो ये ट्राइंगल आ गया ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इधर आइए, जब AQP में से AQB माइनस कर दो, उसमें आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल QBP, एरिया ऑफ ट्राइंगल QBP। फिगर में से देख के पता चल रहा है, ACQ में से ये माइनस करा ABC आ गया, AQP में से ये माइनस करा ये आ गया BQP, ये ट्राइंगल आ गया। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल QBP, अब ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस ऑफ दिस एरिया इज इक्वल टू ABCD because diagonal of the parallelogram divide into two triangle of equal area. Similarly, twice of QBP will be area of parallelogram PBQR because diagonal QP है, divide into two triangle of equal area. So it will become area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram, ये हो गया PBQR। इसका आप रीज़न देंगे, क्या रीज़न देंगे, डायगोनल
of parallelogram divide it in two triangles of equal area. किसी भी पैलोग्राम में डायगोनल उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है और दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर। जब इस ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो ए बी सी का डबल ए बी सी डी आएगा। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो क्यू बी बी का एरिया डबल क्यू बी पी आर पैलोग्राम हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. Reason you have to give in each and every steps. ठीक है, somewhere I have not written reason but I have explained to you why I am writing this reason. So you have to write the reason in each and every step of your solution. So this is the question number 9 of your NCERT book. Now what is the question number 10? The diagonal AC and BD of a trapezium ABCD. Trapezium ABCD is given. ABCD trapezium is given. Diagonal AC and BD intersect each other at O, and you have to prove that AOD का एरिया इस एरिया के बराबर है। तो गिवन क्या है? Given in this parallelogram AB is parallel to DC and diagonal intersecting each other at O. You have to prove that area of AOD is equal to area of triangle BOC. थोड़ा सा easy question है, ज़्यादा difficult नहीं है। Now area of triangle ADC is equal to area of triangle BCD on the same base and between the same parallel line. दोनों triangle का area इस वाले का और इस वाले का equal होगा। Just see, on same base and parallel lines, area of the triangles are equal. Now I'll subtract the area of DOC both sides. दोनों साइड में से हमने DOC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेता है as we have done in last question. Area of triangle ADC minus area of triangle DOC is equal to area of triangle BCD minus area of triangle DOC. तो ABC में से DOC माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD आ गया, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF में से DOC हमने माइनस कर दिया तो इट विल बिकम एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC विच यू हैव टू प्रूव। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ADC का एरिया BDC के बराबर, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ DOC बोथ साइड, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इक्वल टू ईच अदर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 of your NCERT book. Now in question number 11, if you read it carefully, in question number 11, read it very carefully. There is a figure ABCD, एक figure है हमारे पास like this. This is the figure in which A, B, F, C, there is a pentagon A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. This is the pentagon. A line through B is drawn parallel to AC. ये parallel बनाया AC के, मतलब this line is parallel to this. It is given and produced to meet it at F. यहाँ पर F पे meet कर रहा है. This is given. So what is given? It is given that A, B, C, D, E. A, B, C, D, E is a pentagon. And it is given that AC is parallel to BF. And you have to prove that in this. You have to prove that area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF, and area of AEDF is equal to area of ABCD. These two things you have to prove in this figure. Now first part is very easy. Area of triangle ACB is equal to area of triangle ACF. ABC का एरिया और ACF का एरिया बराबर ऑन सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस। ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। नाउ एडिंग एरिया ऑफ AEDC बोथ साइड्स
ये वाला एरिया मैंने दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ. सो इट विल बिकम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी. तो ए बी सी में अगर हमने ये वाला एरिया ऐड कर लिया तो ये तो पहला पार्ट तो हो ही गया प्रूफ. तो इट विल बिकम ए ई डी एफ, ए ई डी एफ, इट विल बिकम एरिया ऑफ ए डी ई एफ. इसमें ये ऐड करा तो ए ई डी एफ ही आ गया. ठीक है, यहाँ पर देखिए इन राइट हैंड साइड अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये वाला एरिया तो इट इज एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ये आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा ये. ए सी, ध्यान से, ए बी सी में अगर हम ए ई डी सी का एरिया ऐड करेंगे तो इट विल बिकम ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई. अगर ए सी एफ में इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एरिया ऐड कर रहे हैं तो इट बिकम ए एफ डी ई, एरिया ऑफ ए ई डी एफ, ए ई डी एफ. ये ई है हमारा, ये डी है, ये एफ है. तो आसान सा ही क्वेश्चन था. ये ट्राइंगल और ट्राइंगल के एरिया बराबर, दोनों में जोड़कर ऐड कर लिया तो दोनों लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे. ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.